बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कर्ण चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ना शुरू करें। The princes of the Kaurav army installed Karn as a generalissimo. Karn stood up in his gorgeous war chariot driven by Salya. The dauntless confidence of his bearing and his great renown as a warrior heartened the Kauravas. Then followed a great battle. The son of Surya sent a dazzling arrow which spat fire and made for Arjun, like a serpent with its flaming double tongue out. Then Krishna, Arjun's charioteer, at the nick of time, pressed the vehicle down 5 fingers deep in the mud, so that the serpent shaft just missed Parth's head but struck off his helmet. Arjun was red with shame and anger, and he fixed a dart on his bow to make an end of Karn. And Karn's fated hour was come, and as had been foretold, the left wheel of his chariot suddenly sank in the blood mire. He jumped onto the ground to lift the wheel up from the mud. Generalissimo, army ka commander, gorgeous, खूबसूरत, dauntless, निडर, bearing, attitude, heartened, make more cheerful and confident, spat fire, आग उगलना, made for, to go towards, nick of time, only just in time, shaft, arrow, mire, कीचड़। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। कौरवों ने कर्ण को अपनी सेना का कमांडर अपॉइंट कर लिया। कर्ण अपने बेहद खूबसूरत रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि पर आया। उसके दिल में दुर्योधन के प्रति प्रेम था, आदर था। उसकी शूरवीरता, उसका युद्ध कौशल और उसका साहस देखकर कौरवों की कुछ हिम्मत बंधी। वे कुछ रीअश्योर हुए कि शायद वो अब युद्ध जीत सकते हैं। एक ऐतिहासिक और महान युद्ध का आरंभ हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने बाण से एक ऐसा तीर छोड़ा जो आग उगल रहा था। वो तीर अर्जुन की ओर कुछ ऐसे बढ़ा जैसे कोई सांप अपने 2 मुंह वाली विषैली जीभ निकालकर आगे बढ़ रहा हो। उस सांप में विष है, आग है। वो तीर निश्चय ही अर्जुन को घायल कर देता, पर सही समय पर अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने रथ को 5 उंगल नीचे धरती में गाड़ दिया। अर्जुन बाल बाल बच गया और तीर उसके हेलमेट पर जाकर लगा। अर्जुन इस वार से बहुत क्रोधित हुआ। उसे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि तीर कमान चलाने में उसे अव्वल माना जाता था। He was supposed to be the best archer in the world. क्रोध में भरकर उसने कमान पर तीर चढ़ाया और कर्ण का अंत करने की ठानी। कर्ण का अंतिम समय आ चुका था और जैसा कि पहले प्रेडिक्शन की गई थी, उसके रथ का पहिया कीचड़ में जाकर धंस गया। उसको बाहर निकालने के लिए वो रथ से उतरकर नीचे आया। आगे बढ़ें। Wait a minute, he cried. My chariot has sunk in the ground. Great warrior as you are, and knowing Dharma as you do, you would certainly not take unfair advantage of this accident. I shall presently set my car right and give you all the battle you want. Arjun hesitated. Karn was now somewhat perturbed on account of the mishap. He remembered the curse that had been pronounced on him and again appealed to Arjun's sense of honor. Krishna intervened. Ha, Karn, he exclaimed. It is well that you too remember that there are things like fair play. Now that you are in difficulty, you remember them indeed. But when you and Duryodhan and Dushasan and Shakuni dragged Draupadi to the hall of assembly and insulted her, how was it you forgot them utterly? You helped inveigle Dharmaputra,
who was fond of play but was unskilled at it, to gamble, and you cheated him. Where had your fair play hidden itself then? Was it fair play to refuse to give to Yudhishthir his kingdom when, according to the pledge, the 12 years of forest life and the 13th year incognito were duly completed? Hesitated माने paused, रुकना, perturbed, uneasy, anxious, mishap, accident, durghatna, appealed, requested, inveigle, लालच देना, to tempt, incognito, गुप्त, pledge, vow या प्रतिज्ञा। कर्ण जब रथ का पहिया कीचड़ में से निकालने के लिए नीचे उतरा तो उसने अर्जुन से कहा, थोड़ा रुक जाओ, मेरे रथ का पहिया फंस गया है। तुम एक महान योद्धा हो, सही और गलत का तुम्हें पूरी तरह से ज्ञान है, तुम धर्म का पालन करते हो, तुम निश्चय ही इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाओगे। मैं अभी रथ के पहिए को कीचड़ में से बाहर निकालता हूं, फिर हम युद्ध करेंगे। मुझे विश्वास है तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे। अर्जुन कुछ झिझका, उसे कर्ण की बात तो ठीक लगी। कर्ण अब तक तो फुल कॉन्फिडेंस से युद्ध कर रहा था, पर जब उसका पहिया ऐसे अटक गया तो वो काफी डिस्टर्ब हो गया, अनईजी हो गया। उसे वो श्राप याद आ गया जो परशुराम ने उसको दिया था। उसके भीतर एक डर बैठ गया। उसने फिर अर्जुन के सेंस ऑफ ऑनर को अपील की। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, श्री कृष्ण बोले, तुम सेंस ऑफ ऑनर और फेयर प्ले की बात करते हो? तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। आज तुम मुश्किल में हो तो तुम्हें फेयर प्ले सूझ रहा है। तब तुम्हारे मॉरल्स और सेंस ऑफ ऑनर कहाँ गए थे जब दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ने मिलकर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था? तुमने युधिष्ठिर को चौसर के खेल के लिए फुसलाया, लालच दी। वो खेलने तो बैठ गया, किंतु उसे खेल के नियम ठीक तरह से मालूम नहीं थे और तुम सब ने मिलके उसको चीट किया। तब तुम्हारा सही गलत को पहचानने का मापदंड कहाँ गया था? तब तुम्हारा फेयर प्ले कहाँ चला गया था? जब युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा का पालन करके 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष छिपकर डिस्गाइज में काटे थे, मगर फिर भी उसका राजपाट तुमने वापस नहीं दिया, क्यों? आगे पढ़ें। What had happened to the dharma you appeal for now? You conspired with the wicked men who sought to poison and kill Bhim. You acquiesced in the plot to burn the Pandavas alive when sleeping in the palace of wax into which they had been lured. What had happened to Dharma all that time? What did Dharma tell you when violent hands were laid on Draupadi and you were looking on enjoying the sight? Did you not then mock at her, saying, your husbands have left you unprotected. Go and marry another husband? The tongue that was not ashamed to utter those words now talks of chivalry. Chivalry indeed. When a mob of you surrounded the young Abhimanyu and shamelessly slew him, was that chivalry? Wicked man, do not talk now of chivalry and fair play, for you have never honored them. Conspire, षड्यंत्र रचना, एक्विएस्ड, रजामंद होना, ल्योर्ड, ललचाना, फुसलाना, शिवलरी, शौर्य, डिसेंसी, स्ल्यू, किल्ड। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम आज धर्म की, नैतिकता की बातें करते हो। तुमने उन कपटी बुरे लोगों के साथ मिलकर भीम को जहर देने का प्रयास किया था। तुमने उन सब का फिर साथ दिया जब उन्होंने पांडवों को लाख के घर में इनवाइट किया और जब वे सो रहे थे उन्हें जिंदा जला देने का प्रयास किया। द्रौपदी के चीर हरण में भी तुमने साथ दिया। क्या ऐसा भयानक दृश्य देखकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
उस पाप को रोकना तो दूर रहा, तुम तो उसके मजे ले रहे थे। तुम्हारे मुंह से तो ऐसे गलत शब्द भी निकले कि द्रौपदी, तुम्हारे पतियों ने तो तुम्हें निसहाय छोड़ दिया है, अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया है। तुम किसी अन्य से शादी कर लो। ऐसा कहते हुए तुम्हारी जीभ जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। वही जीभ आज शौर्य की, डिसेंसी की बातें करती है। क्या वो बहादुरी थी, शूरवीरता थी, जब तुम सब ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु को घेर लिया और क्रूरता से उस बेचारे का वध कर दिया? तुम्हारे जैसा दुष्ट मनुष्य शौर्य की बातें करता है, धर्म की बातें करता है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमने कभी डिसेंसी और फेयर प्ले को अपनाया ही नहीं, इसलिए तुम तो उनका नाम भी मत लो। आगे बढ़ें। When Krishna was denouncing him in this manner, in order to urge Arjun to prompt action, Karn bent his head in shame and uttered not a word. He silently ascended the chariot, leaving the wheel still stuck in the mud, and took his bow and sent an arrow at Arjun with unerring aim and such power that it stunned him for a moment. Karn utilized the respite won to jump down again and hurriedly try to lift the chariot wheel up. But the curse was too strong for him, and fortune had deserted the great warrior. The wheel would not budge, though he strove with all his great strength. Then he tried to recall the mantras of the mighty Astrals he had learned from Parshuram, but his memory failed in the hour of his need, as Parshuram had foretold. Waste no more time, Arjun, cried Madhav. Send your shaft and slay your wicked enemy. Denouncing, आरोप लगाना, prompt, प्रेरित करना, ascended, ऊपर चढ़ना, unerring, अचूक, बिना भूल किए, respite, राहत, budge, move. जब श्री कृष्ण कर्ण पर ऐसे आरोप लगा रहे थे, तब कर्ण सिर झुकाकर चुपचाप सुन रहा था। कृष्ण कर्ण को जानबूझकर भी बातों में उलझा रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे अर्जुन मौके का फायदा उठाकर कर्ण का वध कर दे। कृष्ण की बातों से कर्ण बेहद शर्मिंदा हुआ और बिना पहिए को कीचड़ से बाहर निकाले वो रथ पर चढ़ गया। उसने अर्जुन पर निशाना साधा और शक्ति से तीर छोड़ा तो अर्जुन कुछ क्षण के लिए तो भौचक्का रह गया। ये कुछ पलों की जो मोहलत कर्ण को मिली तो वो तेजी से नीचे उतरा और फिर से पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश करने लगा, पर श्राप का असर बहुत गहरा था। उसकी किस्मत ने भी उसका साथ उसी समय छोड़ दिया। बहुत हिलाने पर भी पहिया बिल्कुल नहीं हिला। डेस्परेशन में उसने सभी वो मंत्र याद करने का प्रयास किया जिनको याद करने से अस्त्र चलाए जा सकते हैं, किंतु परशुराम के सिखाए सभी मंत्र जरूरत के समय उसे याद नहीं आए, ठीक जैसा परशुराम ने उसको श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने ये सब देखा और अर्जुन को आदेश दिया कि वो अपने बाण से कर्ण का वध कर दे। आगे पढ़ें। Arjun's mind was wavering. His hand hesitated to do what was not chivalrous. But when Krishna said this, the poet says, Arjun accepted this command of the Lord and sent an arrow which cut and severed the head of the Radhe. The poet had not the heart to impute this act to Arjun, who was the embodiment of nobility. It was the Lord Krishna that incited Arjun to kill Karna when he was vainly trying to raise his chariot out of the mud in which it had stuck. According to the code of honor and laws of war prevailing then, it was wholly wrong. Who could bear the responsibility for breaches of dharma except the Lord himself? Wavering, uncertain, doubting, severed, काट देना,
इम्प्यूट आरोप लगाना, एम्बॉडिमेंट पर्सोनिफिकेशन, एग्जाम्पल इंसाइट इन्फ्लुएंस प्रोवोक, ब्रीच वायोलेट या उल्लंघन करना। अर्जुन को श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि वो कर्ण का वध कर दे, पर अर्जुन डगमगा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि ऐसा करना अधर्म होगा, युद्ध की नीतियों के विरुद्ध होगा, पर फिर भी अधूरे मन से उसने आदेश का पालन किया और कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका मन दुखी था क्योंकि वो जानता था उसके हाथों पाप हुआ है। यदि श्री कृष्ण ने उसे प्रवोक नहीं किया होता तो शायद कर्ण को इस प्रकार से नहीं मारता, वो भी ऐसी स्थिति में जब वो हेल्पलेस था, वल्नरेबल था। युद्ध के सभी रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ ऑनर के विरुद्ध उन्हें तोड़कर कर्ण की हत्या हुई। धर्म के विरुद्ध कोई साधारण मनुष्य तो कभी नहीं जाता। धर्म के विरुद्ध जाने की हिम्मत और जिम्मेदारी तो केवल धर्म के रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ले सकते हैं। यहां पूरा होता है चैप्टर कर्ण का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।